नमः। Translation. He then explained by divisions act of charity the pragmatic activities of the king and the activities for salvation. Then he described the duties of women and devotees both briefly and extensively. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते स्वारसती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Akshay Prabhu can take the attendance of all the devotees who are present in the class. So, Bhishma Dev is lying down on the bed of arrows, and on the bed of arrows he was waiting for the Lord. So when the Supreme Person of Godhead will appear, and seeing his beautiful moon-like face and beautiful form, he will leave or quit his body. So in Bhishma Dev, he requested the Supreme Lord to wait till he leaves his body. So Yudhishthir Maharaj took the opportunity to ask some valuable questions. So we have already discussed before that how association of devotees, great souls, are very, very important. So when the great devotees are present in front of us, what is the best benefit we can take? कोई महान भक्त अगर हमारे सामने रहते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट हम लोग कैसे ले सकते हैं? बाय आस्किंग क्वेश्चन। तो एक बार कुछ भक्त लोग अपने जीवन में परेशान थे, तो बहुत दुखी थे, उनको लग रहा था कि प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। तब प्रभुपाद जी उनको पूछा कि व्हाई यू आर क्राइंग, why you are suffering? Your guru is still present on the earth. Why not you ask question? So you ask question. I order you, you ask question and you solve your problem and be happy. Your guru is present and I order you to be happy. तो गुरु जो होते हैं भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, and when Guru is present in front of us, especially physically he is present, we should take opportunity to ask question from spiritual master. So many times we become stuck in our spiritual life. We do not find the way to get out of the problem. And another side, we do not have that much strength to ask the question to spiritual master. So we have to find out the way to approach spiritual master, either directly or by mail or through his representatives. We should inquire from spiritual master and remove the doubt, clarify the doubt.
So it is very, very important when spiritual master is personally present, we should take his association, we should inquire from him, and we should take the benefit of his Bani. So Yudhishthir Maharaj asking some valuable question, and Bhishmadev he was asking, he was giving the answer. So in this particular section, we have discussed before that the Supreme Personality of Godhead wanted to prove that though his devotees on is lying on the deathbed, but is capable to give message about the life. So the Supreme Personality of Godhead, he wanted to prove the glories of his pure devotees. The Supreme Personality of Godhead, जयदीप प्रभु फोन में प्रेजेंट है, तो भगवान ये स्थापना करना चाहते थे कि उनके शुद्ध भक्त जो होते हैं वो शरीर के स्तर से परे होते हैं, और इसीलिए शरीर के कठिन परिस्थिति में भी वो आध्यात्मिक जीवन के बारे में, जीवन के लक्ष्य के बारे में, जीवन के कर्तव्य के बारे में उपदेश दे सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान के जो महान भक्त होते हैं वो मृत्यु को भी विजय कर लेते हैं। भगवान के महान भक्त लोग मृत्यु को जय कर जाते हैं। तो ये भीष्मदेव की महिमा भगवान श्री कृष्ण भीष्मदेव जाने से पहले सारे विश्व को बताना चाहते थे। तो पिछले श्लोकों में युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताए। तो वर्णाश्रम वर्ण एवं अलग अलग आश्रम, उसके विभाग, उसके बारे में वर्णन किए, और फिर किस प्रकार हमें दो प्रकार है, किस प्रकार हमें अनासक्त होना चाहिए, और आसक्ति के बारे में, आसक्ति की जो अंत क्रिया है उसके बारे में वर्णन किए। और फिर इस श्लोक में भीष्म पितामह दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म, ये 5 प्रकार के धर्म के बारे में वर्णन किए। इसके बारे में लास्ट वीक में हम लोग थोड़ा डिटेल्स चर्चा किए थे, तो उसका कुछ पार्ट हम लोगों ने मिस किया था, तो उसको मैं अटैच करना चाहूंगा। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि दान जो है ये गृहस्थ का कर्तव्य है, और बाकी 3 आश्रम जो है वानप्रस्थ, संन्यास और ब्रह्मचारी, तो इनका कर्तव्य है तपस्या करना और आत्मत्याग करना, सैक्रिफाइस। तो दान गृहस्थ की प्रधान कर्तव्य है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो गृहस्थ जो बहुत कष्ट करके धन कमाते हैं, तो उसका 50% दान करने के लिए तैयार रहना चाहिए एक गृहस्थ को। तो हम लोग चर्चा करेंगे
क्यों दान करना जरूरी है गृहस्थों के लिए? तो शास्त्र में वर्णन है कि 50% ए हाउस होल्डर शुड डोनेट फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भगवान की सेवा करने के लिए दान करना चाहिए। या अलग अलग आश्रम जो हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ संन्यास, जो त्याग के आश्रम में हैं, उनकी सेवा करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए वो धन का दान करना चाहिए। तो अगर कोई 50% दान नहीं कर सकते तो कुछ परसेंटेज, 10% एटलीस्ट, 1-5% दान तो करना ही चाहिए। इसलिए हम लोगों को क्या बोलते हैं, इजी सर्विसेज हैं, तो जिसके द्वारा आप वो गृहस्थ का जो कर्तव्य है, जो गृहस्थ आश्रम में है या गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बाकी जो ब्रह्मचारी है, जो स्टूडेंट है या वानप्रस्थ संन्यास, उनका कर्तव्य है तपस्या करना और कृच्छ साधन करना, तो कष्ट करना, आध्यात्म मार्ग में या आत्म उपलब्धि करने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए कष्ट स्वीकार करना चाहिए, कृच्छ साधन करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। तो ब्रह्मचारी आश्रम में कोई ये सीखता है कि सब कुछ भगवान का प्रॉपर्टी है और इसीलिए सब कुछ भगवान की सेवा में नियुक्त करना हमारे कर्तव्य है। तो इसीलिए हमें जरूरत से ज्यादा संचय नहीं करना चाहिए और भगवान की संपत्ति को अपने संपत्ति बोल के दाबी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मचारी आश्रम में, संन्यास आश्रम में जो साधक भक्त हैं, वो सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी बोल के जानते हैं और सब कुछ भगवान की सेवा में नियुक्त करने की प्रयास करते हैं और कुछ भी चीज अपना प्रॉपर्टी बोल के दाबी नहीं करते। तो इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में जो एक व्यक्ति है, तो वो गृहस्थ आश्रम में जो एक व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में जो एक व्यक्ति है, हृदय से वैराग्य का पालन कर सकते हैं, हृदय से डिटैचमेंट का पालन कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ रिसीविंग नॉलेज फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के द्वारा और शास्त्रों का अध्ययन करने के द्वारा और आध्यात्मिक अनुशीलन करने के द्वारा ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास आश्रम के एक व्यक्ति ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं या पहुंचना चाहिए कि सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी है और मनुष्य जीवन सब कुछ भगवान के प्रॉपर्टी है और इसलिए हमारे लिए जितने भी जरूरत है उतना ही संचय करना चाहिए और सब कुछ भगवान की सेवा में व्यवहार करना चाहिए। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति
और उस भगवत प्राप्ति ही हमारे जीवन के परम लक्ष्य होना चाहिए। और इसीलिए हमें इस भौतिक जगत में इंद्रियों भोग में हमें फंसना नहीं चाहिए। इंद्रियों भोग से मुक्त होना चाहिए। इंद्रियों भोग हमारे बंधन का कारण है। और इसीलिए हमें जीवन की जो परम प्राप्ति है, उस परम प्राप्ति अर्थात भगवत प्राप्ति करने के लिए हमें संपूर्ण मनोनिवेश, फुल फोकस करना चाहिए। तो ब्रह्मचारी आश्रम, संन्यास आश्रम इज ए फेवरेबल क्या बोलते हैं, इट्स ए फेवरेबल atmosphere, favorable environment, favorable platform where one can give his full focus to achieving the goal of his life. भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्यादा फोकस या संपूर्ण फोकस दे सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। और इसीलिए भगवान की सेवा करने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए पूरी फोकस कर सकते हैं। उनके पास पर्याप्त समय होता है जिसके द्वारा वो भगवान की सेवा, कृष्ण की सेवा, शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं और एक सिंपल लाइफ लीड कर सकते हैं। तो ये ब्रह्मचारी या संन्यास आश्रम का धर्म है। ब्रह्मचारी आश्रम के धर्म है शास्त्र अध्ययन और गुरु सेवा। गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम का कर्तव्य है प्रचार करना और दूसरे के प्रति दया करना। तो ये संन्यास आश्रम का कर्तव्य है। तो इस प्रकार कोई व्यक्ति मोक्ष या भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अच्छे से ब्रह्मचारी का पालन करते हैं तो he have 70% chance to going back to Godhead, 75% chance he can go back to Godhead। अगर अच्छे से ब्रह्मचारी का पालन करते हैं तो बाकी 25% डिपेंड करता है कैसे सिंसियरली वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति एक पर्वत में चढ़ते हैं, सुबह स्वामी गुरु महाराज बोल रहे थे कि गृहस्थ आश्रम मतलब एक बहुत बड़ा बैग लेके अगर पहाड़ में चढ़ते हैं तो उसको गृहस्थ आश्रम के साथ तुलना किया गया है। सपोज एक बड़ा कठाल होता है, कठाल लेके अगर आपको पहाड़ में चढ़ना होगा, जैसे हम लोग तिरुपति बालाजी गए थे, कितना कष्ट हुआ था, बाप रे बाप। पहला जो 2 घंटा तो इतना सीढ़ी चढ़ के हैं हम लोग, तो थोड़ी देर बाद ही बैठ जा रहे थे, लग रहा है नहीं आज नहीं होगा। बाहर से हम लोग गाड़ी लेके चले जाए तो अगर बचपन में ब्रह्मचार्य का पालन नहीं किया है, गृहस्थ आश्रम में अलग अलग दायित्व, अलग अलग समस्या में इतना जकड़ जाएगा, लग रहा है कि छोड़ के भाग जाए। तो इसलिए अगर हम लोग भक्ति ठीक से नहीं करेंगे, अगर हम लोग इंद्रिय संयम का शिक्षा बचपन से नहीं सीखेंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा भाग्यशाली है कि यूथ लाइफ में गृहस्थ आश्रम जाने से पहले भगवान के भक्ति किए हैं। लेकिन इसका इंटेंसिटी अभी नॉलेज के रूप में प्रैक्टिकली और आपको अप्लाई करना है। इसका इंटेंसिटी और इनका सिंसियरिटी और अच्छे से क्या बोलते हैं, अच्छे से उसको रियलाइजेशन करना है, उसको हृदय से हमें एक्सेप्ट करना है। तब आप अगर गृहस्थ आश्रम में जाएंगे
तो अपने लक्ष्य में स्थिर रह सकते हैं और भौतिक जो अलग अलग समस्या है, अलग अलग दायित्व हैं, उससे ओवरलोडेड नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए ब्रह्मचारी लाइफ इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू dedicate one's life and focus more and more in the service of Guru and Krishna, and और understanding के जो भौतिक जगत है अनित्य है, भौतिक जगत में हर प्रकार के दुख है। जैसे मैं कुछ भक्तों से बात कर रहा था, तो गृहस्थ आश्रम में है, तो कुछ कोरोना वायरस के सिचुएशन में उनका जॉब चला गया था। तो जब जॉब चला गया तो कितना परेशानी है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि हमारा जॉब है, हमारा बैंक बैलेंस है, हमारा सिक्योरिटी है, बट वेयर इज द सिक्योरिटी इन द मटेरियल वर्ल्ड? सो एनी टाइम एनी सिचुएशन कैन चेंज। पदम पदम जद विपदम न तेषाम। तो इसलिए भगवान की आश्रय लेके रहना सबसे सुरक्षित है। तो आपका कोई भौतिक चीजों का चिंता नहीं है। ब्रह्मचारी लाइफ में कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। भगवान गुरु की सेवा, हालांकि कृष्ण की सेवा का बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, तो उसमें अगर हमारा मृत्यु भी हो जाता है, अगर कुछ हो भी जाता है, तो कोई चिंता नहीं है कि कौन देखेगा, क्या होगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि 70% अपॉर्चुनिटी है, तो उसका बेनिफिट लेना चाहिए। विशेष करके जो ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करेंगे सोच रहे हैं, तो उसको और दृढ़ता के साथ लेना चाहिए। और जो गृहस्थ आश्रम में है, उनको भी ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। एक पत्नी ब्रह्मचारी, प्रभुपाद जी जैसे बोलते हैं। तो गृहस्थ का एक प्रधान कर्तव्य है, दो कर्तव्य है। एक है, लास्ट टाइम हम लोग 4 प्रकार के यज्ञ के बारे में बोल रहे थे, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, और फिर ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, और कौन सा है? अतिथि यज्ञ। ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। तो गृहस्थ का कर्तव्य है दान करना और अतिथियों का सेवा करना। तो ये 2 चीज क्यों करना पड़ता है? तो गृहस्थ आश्रम में एक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के चीजों, वस्तु का संचय करना पड़ता है। विशेष करके उनको धन संचय करना पड़ता है, और बहुत सारे जो क्या बोलते हैं, अलग अलग वस्तु हैं, फर्नीचर्स, अलग अलग फैसिलिटी, ये सारा चीजों का संचय करना पड़ता है। और उस संचय के कारण एक गृहस्थों को आसक्ति, स्वाभाविक रूप से आसक्ति उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है। आसक्ति के कारण मोह उत्पन्न होता है। काम या भोग करने की, मोह के कारण भोग करने की इच्छा उत्पन्न होता है। तो अविद्या काम कर्म भी, तो जीवन में बहुत बेसिक नेसेसिटीज को इकट्ठा करने के चक्कर में बहुत बार हम लोग ज्यादा संचय करते हैं, और क्योंकि हृदय में भोग करने की इच्छा है, और इसलिए हम लोग ज्यादा धन कमाते हैं, अत्याहार, और उसके लिए प्रयास करते हैं।
और उसके कारण हमें भोग करने की इच्छा बढ़ते। तुम्हार कनक भोगेर जनक, कनको कामिनी प्रतिष्ठा बाघिनी। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, तुम्हार कनक भोगेर जनक, तुम आपका जो धन है वो भोग क्यों जन्म देता है। और कनको कामिनी प्रतिष्ठा बाघिनी, छारिया छे जारे सही तो वैष्णव। तो वैष्णव कौन है? जो धन की आसक्ति और स्त्री के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ा है, और उसके ऊपर और एक आसक्ति है प्रतिष्ठा, जो वैराग्य के आश्रम में आता है। तो ये तीन जो आसक्ति है इसको जो छोड़ चुके हैं वो है वैष्णव, वो वैष्णव हो सकते हैं। तो जितना हम लोग इस जो तीन चीजों के प्रति हमारा आसक्ति कम होता है, हमारे पास रह सकता है लेकिन उसके प्रति आसक्त नहीं है, तो आसक्ति यू कैन नॉट गिव अप। So if you do not have आसक्ति for the supreme lord और for his service, गुरु के या कृष्ण के प्रति हमारा आसक्ति या उनकी सेवा के प्रति अगर हमारा आसक्ति नहीं उत्पन्न होगा या बनाने की प्रयास नहीं करेंगे, कल्टीवेट करने के प्रयास नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमें धन के प्रति, स्त्री के प्रति, इसके प्रति आसक्ति बनेगा और बढ़ेगा। तो एक गृहस्थ को तो जीवन परिचालन करने के लिए धन तो कमाना है, और बेसिक कुछ फैसिलिटीज भी जरूरत है। घर चाहिए या फर्नीचर चाहिए या ऑर्नामेंट्स चाहिए, कपड़े चाहिए, यूटेंसिल्स चाहिए, कार चाहिए, तो कुछ कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन हृदय में भोग करने की इच्छा रहने के कारण या समाज में अलग अलग लोगों को देख के हमें लगता है कि हमें भी जरूरत है, और बहुत बार अगर स्त्री भगवत भक्ति में नहीं होते हैं या पीछे होते, नीचे होते, तो वो एक परिवार में एक अननेसेसरी रिक्वायरमेंट क्रिएट करती हैं कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं होगा तो कैसे सुखी होंगे, ये नहीं होगा तो कैसे चलेगा, इसके पास है, इनके पास है, मेरे पास नहीं है। तो इस प्रकार जैसे चाइल्ड डिमांड्स, सिमिलरली वुमन इज लाइक ए लेस इंटेलिजेंट, सो शी आल्सो वांट टू हैव लॉट ऑफ थिंग। तो ये वुमन का नेचर होता है, टू गेट पॉजिटिव मोर एंड मोर एंड एंजॉय मोर एंड मोर। एंड if husband is not advanced in Krishna consciousness, then he will be caught by the demand he will be entangled by the attachment with his wife. पत्नी के प्रति आसक्ति के द्वारा वो उसके द्वारा क्या बोलते हैं, एंटेंगल हो जाएंगे, और इस प्रकार बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करने लगेंगे। तो धन कमाने के लिए और भौतिक जो जरूरत है उसको बढ़ाने के लिए। तो इसलिए गृहस्थों के लिए दान करना बहुत जरूरी है। दान करने के द्वारा वो जो आसक्ति है वो कम हो जाता है। जो हमारे पास ज्यादा धन है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमारे पास पोस्ट है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, हमारे पास कार है, तो ये जो अलग अलग प्रकार के जो वस्तु हैं, तो ये दान करने के द्वारा वैष्णवों को या ब्राह्मणों को या भगवान की सेवा में या अतिथियों को या परिवार के लोगों को दान करने के द्वारा हमारे आसक्ति कम होता है। एक गृहस्थों के एक आसक्ति कम होता है। तो जितना एक व्यक्ति, अगर गृहस्थ व्यक्ति दान नहीं करता है तो उनको भोग करने की इच्छा और बढ़ जाता है। तो इसे दान करने के द्वारा उनकी आसक्ति, उनकी मोह, उनकी काम वासना कम होता है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में दान करना बहुत जरूरी है। तो
तो हम लोग कृष्ण की सेवा में दान कर सकते हैं, कृष्ण के प्रचार में दान कर सकते हैं, या हमारे जैसे मंदिर में या वॉइस में नित्य सेवा है या इजी सर्विस है, तो उसमें अब रेगुलर बेसिस में कुछ गुड अमाउंट ऑफ मनी हमें दान करने के द्वारा हमारे आसक्ति को कम कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग मेहनत करते हैं तो जनरली हमारे हृदय में फ्रूटी मेंटालिटी तैयार होता है कि वी एंजॉय द रिजल्ट ऑफ आवर वर्क। So that is why we are there in this material world. तो दान करने के द्वारा हमारा धन जब भगवान की सेवा में लगता है तो हमारे अटैचमेंट कृष्ण के प्रति लगता है। तो इसलिए दान करना बहुत ही आवश्यक है। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे तो वसुदेव क्या बोलते हैं, कैद हुए थे। तो वसुदेव गृहस्थ थे और राजा थे, तो सोच रहे थे मैं कैसे दान कर सकता हूँ। अब मेरे कृष्ण जन्म हुए, प्रकट हुए, तो इतने खुश थे तो कुछ दान करना चाहते थे खुशी से। तो तब क्या हुआ, क्योंकि वो फिजिकली दान नहीं कर सकते तो मेंटली लाखों ब्राह्मणों को गाय, अलंकार, वस्त्र, अन्य अलग अलग वस्तुओं का दान किए थे। तो इसलिए कृष्ण भावना में अगर हम लोग प्रगतिशील होंगे तो हम लोग हमेशा दूसरे को दान करना चाहेंगे। तो हम धन दान कर सकते हैं, हम लोग प्रसाद वितरण कर सकते हैं। तो ये अगर आपके घर में आप प्रचार करते हैं तो एटलीस्ट कुछ लोगों को तो आप प्रसाद खिला सकते हैं। आप लोग आपके घर में कुछ भक्ति विश्व क्लास जो गृहस्थ है अपने घर में भक्ति विश्व क्लास खोल सकते हैं और हफ्ते में एक दिन उनके घर में सत्संग होगा, तो उसमें अतिथि का सेवा भी होगा, दान भी हो जाएगा, उनके पैसा जो है कृष्ण की सेवा में लगेगा। तो इस प्रकार कोई व्यक्ति दान कर सकते हैं। तो अगर किसी का दान करने की शक्ति नहीं है, धन या किसी तरीके से दान नहीं कर सकते, तो हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र वितरण करने में कोई धन का आवश्यकता नहीं होता है। प्राण आछे जार से हेतु प्रचार, तो जिनका प्राण है वो कृष्ण भक्ति का वितरण कर सकते हैं। दूसरा है कि अतिथि सेवा। तो अतिथि सेवा क्यों करना चाहिए? तो जब कोई गृहस्थ धन उपार्जन करते हैं या अलग अलग वस्तु का संचय करते हैं, तो अपने परिवार को पालन करते हैं, तो एक तो आसक्ति उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, और दूसरा ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। तो गृहस्थों का अपना प्रॉपर्टी, अपना चिल्ड्रन, माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, माई होम, माई मनी, माई बिजनेस, एक एक मेंटालिटी डेवलप होने का बहुत चांसेस रहता है, नेचुरली ये हो जाता है। तो इस प्रकार आई एंड माई, आई एंड माइन, मैं और मेरा, ये मेंटालिटी आ जाता है। तो मेरा और तेरा, मेरा और तेरा, तो इस प्रकार एक मेंटालिटी तैयार होता है। तो मैं जब घर में था मैं भी देखा कि हमारे घर में अदर जो क्या बोलते फैमिली मेंबर्स हैं, चाचा लोग हैं, या फैमिली रिलेटिव्स लोग हैं या नेबर्स लोग हैं, उसके साथ अलग अलग समय में झगड़ा होता रहता था। आप देखेंगे आपके घर में या आपके नेबरहुड में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति के साथ, एक प्रतिवेशी के साथ दूसरा प्रतिवेशी का लड़ाई होता रहता है। एवरीबॉडी इज एनवियस ऑफ ईच अदर। दूसरे का अगर दुख होता है तो खुशी होता है, और दूसरे का जो अगर वृद्धि होता है, उसका प्रगति होता है, जलन होता है। तो ये गृहस्थ आश्रम में
रहने के कारण स्वाभाविक रूप से हो जाता है। तो इसलिए अतिथि सेवा का मतलब है उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम, कि भगवान वासुदेव सबके पिता हैं। तो भगवान सबके पिता हैं और हम सब लोग भगवान के संतान हैं। और इस प्रकार भगवान को केंद्र करके एक आध्यात्मिक परिवार है। वसुदेव, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। तो अतिथि नारायण हम लोग बोलते हैं। किस लिए अतिथि सेवा किस लिए किया जाता है? क्योंकि अतिथि जो होते हैं नारायण अर्थात भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। तो एक गृहस्थों को उसी चेतना से लेना चाहिए कि सब लोग भगवान के संतान हैं, सब लोग भगवान के अंश हैं, तो हमें उनकी सेवा करना चाहिए। तो जब हम लोग अतिथि को हमारे घर में इनवाइट करते हैं, अभी घर के बाहर लिखा रहता है, कुकुर होते सावधान, बी अवेयर ऑफ डॉग। तो लोग घर में कुत्ते को पालते क्यों? लोग घर में कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार एक ईर्ष्या के एक्सप्रेशन है। तो जब कोई व्यक्ति अतिथि का सत्कार करते हैं, तो या पड़ोसी का सत्कार करते हैं, या एटलीस्ट वैष्णवों को बुलाते हैं अपने घर में। बहुत बार लोग इतने ईर्ष्यालु रहते, वैष्णवों को बुलाना नहीं चाहते, साधुओं को बुलाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि साधु को बुलाएंगे तो उनके सेंस ग्रेटिफिकेशन कम हो जाएगा। साधु बोलेगा ये छोड़ दो, साधु बोलेगा वो छोड़ दो, इसलिए साधु को बुलाना नहीं चाहते, डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है साधु को बुलाएंगे तो हमारा होप चला जाएगा। तो इस प्रकार अतिथि सेवा नहीं करने से, साधु सेवा नहीं करने से उनका आसक्ति और ईर्ष्या भाव बढ़ता है। तो इसीलिए दान करने से हमारा आसक्ति कम होता है और अतिथि सेवा करने से हमारा ईर्ष्या कम होगा। और इस प्रकार एक गृहस्थ कृष्ण कॉन्शियसनेस में अगर दान और कृष्ण कॉन्शियसनेस में अतिथि सेवा करते हैं, तो एक गृहस्थ भक्त भी आसक्ति से परे जा सकते हैं और ईर्ष्या से परे जा सकते हैं। ईर्ष्या से परे जा सकते हैं और आसक्ति से परे जा सकते हैं। वो भी सब कुछ कृष्ण की प्रॉपर्टी बोल के स्मरण कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और सब लोग कृष्ण की दास हैं, और सबके हितैषी, सबके सुहृद बन सकते हैं। तो दूसरे ओर अगर आप कृष्ण की भक्त बनेंगे, अच्छा, नेचुरली यू वांट टू ऑफर समथिंग टू कृष्ण। आप कृष्ण की सेवा में कुछ ना कुछ दान करना ही चाहेंगे, और आप अगर कृष्ण के भक्त बनेंगे तो नेचुरली कृष्ण भक्ति आप सबको वितरण करना चाहेंगे, आप सबके हितैषी बनेंगे। स्वाभाविक रूप से ही अगर आप कृष्ण भक्त बनेंगे, स्वाभाविक रूप से अच्छा गृहस्थ बन जाएंगे। So sometimes we are more conscious about to become a good गृहस्थ than a good devotee. तो अगर आप बहुत साइंटिफिकली देखेंगे कि if somebody become a better devotee, naturally become a better गृहस्थ, he naturally will कुछ दान करेंगे, नेचुरली दूसरे के प्रति हितैषी रहेंगे, सुहृद रहेंगे, दूसरे को प्रचार करेंगे, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करेंगे। तो हम लोग क्यों कृष्ण भक्ति में ज्यादा हम लोग कृष्ण भक्ति में ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते हैं? बिकॉज वी वांट टू एंजॉय मोर। तो इसीलिए we should try to become a better devotee, and we should be more connected with the spiritual master and the mission of spiritual master and the mission of spiritual master. So when you become like that, either you brahmachari, either you become grihastha, you become better devotee, you become a better grihastha, you become a better brahmachari, you become a better sannyasi. So therefore it is very very vital to take Krishna consciousness more seriously. तो इस प्रकार
भीष्म पितामह दान धर्म और वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताते हैं, और फिर वो राज धर्म के बारे में बताते हैं, राजा का क्या धर्म है उसके बारे में बताते हैं। उसमें दो चीज भीष्म पितामह बताते हैं कि राजा का कर्तव्य है प्रजाओं को शिक्षा देना, किसमें ना धर्म के मार्ग में चलने के लिए, और भगवान के पास वापस जाने के लिए राजा का कर्तव्य है शिक्षा देना। तो প্রজাদের মুক্তি লাভের পথে পরিচালিত করাই ছিল রাজার সবচাইতে বড় কর্তব্য। পিতা গুরু রাজাকে কখনোই তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধির বন্ধন থেকে মুক্তির পথে পরিচালিত করার বিষয়ে উদাসীন বা দায়িত্বহীন হওয়া উচিত নয়। যখন প্রাথমিক কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদিত হয় তখন আর জনসাধারণের দ্বারা রচিত গণতান্ত্রিক সরকারের প্রয়োজন হয় না। तो राजा का पहला कर्तव्य है कि प्रजाओं को यज्ञ अनुष्ठान या भगवत मुक्ति के मार्ग में उनको प्रेरणा देना। और फिर राजा का कर्तव्य है कि कोई व्यक्ति अगर समाज में अन्याय कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को सजा देना। क्षत्रिय, क्षत मतलब क्षता मतलब नुकसान या दुख, त्रिय मतलब त्राण करने वाले, जो त्राण करते उसको बोलते क्षत्रिय। तो और राजा जो कर लेते हैं उस कर से जो धन इकट्ठा होता है उससे यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, और यज्ञ का अनुष्ठान करने के द्वारा पूरे समाज के कल्याण होगा, प्रजा लोग भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। और फिर मोक्ष धर्म, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मोक्ष धर्म के बारे में भीष्म पितामह बता रहे हैं इधर। तो किस प्रकार अलग अलग चीजों से हम लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो मुक्ति लाभের उद्देश्य काम, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जय करते हो। तो मुक्ति लाभ करने के लिए ये सारी चीजों से मुक्त होना जरूरी है। क्रोध से हम मुक्ति लाभ कर सकते हैं अगर क्षमा का अनुशीलन करते हैं। क्षमा का प्रैक्टिस करने के द्वारा हम लोग क्रोध से ऊपर जा सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के लीला में हम लोग देखते हैं किस प्रकार नित्यानंद प्रभु क्षमा कर देते हैं, या श्रीवास ठाकुर चापाल गोपाल को क्षमा करते हैं। तो इस प्रकार वैष्णव लोग जो होते हैं दुष्ट के प्रति बहुत दयालु होते हैं, क्षमाशील होते हैं, और इस प्रकार क्रोध से विजय कर जाते हैं। तो অবৈধ বাসনা जो है, অবৈধ বাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করার প্রবণতা ত্যাগ করতে হয়। अलग अलग प्रकार की जो अवैध वासना है उससे अगर हम लोग मुक्त होना चाहते हैं तो फ्यूचर के बारे में जो हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, ये क्या होगा, वो क्या होगा, इसका क्या रक्षा होगा, उसका क्या होगा, आगे जाके क्या होगा, तो ये सारे चीज के बारे में ज्यादा हम लोग सोचते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन का इच्छा जो होता है और बढ़ता है। तो हमें जितना जरूरत है उतना इनकम करके हमें खुश रहना चाहिए, और हमें ये समझना चाहिए कि कृष्ण जरूर हमारा टेक केयर करेंगे। अगर हमें उतना विश्वास नहीं है, अगर हम लोग जितना जरूरत है उससे ज्यादा कमाने की प्रयास कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं ये घर कैसे चलेगा, ये कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, इसका मतलब है हमारे हृदय में भोग करने की इच्छा और बढ़ रहा है। तो इसीलिए
ये जो फ्यूचर प्लानिंग है, अननेसेसरी फ्यूचर प्लानिंग, एक्स्ट्रा फ्यूचर प्लानिंग, वी शुड कट ऑफ and you should remember that material life is temporary, nothing we can take, and we have to plan so that you can go back to Krishna. भगवान के धाम में जाने का प्लानिंग करना चाहिए, भगवान की सेवा करने की प्लानिंग करना चाहिए। इस प्रकार हम लोग डाउटेल कर सकते हैं। फिर निद्रा को कैसे जय कर सकते हैं? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा, अच्छा साधना के द्वारा। सुबह अगर मॉर्निंग में मंगल आरती उठ जाते हैं, जब करते हैं, तो आप निद्रा को जय कर सकते हैं। लोभ को कैसे जय कर सकते हैं? तो लोभ, ग्रीड, यू कैन ओवरकम द ग्रीड बाय सहिष्णुता, बाय टॉलरेंस। तो लोभ आएगा, इसको प्राप्त करने की इच्छा होगा, उसको प्राप्त करने की इच्छा होगा, और ज्यादा कमाने की इच्छा होगा, लेकिन इसको लोभ आने से हमें उसमें प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें उसको सहन करना चाहिए। तो senses will demand more and more, but instead of serving the senses, we have to tolerate the urges of the senses. इस प्रकार सहिष्णुता के द्वारा हम लोग लोभ को जय कर सकते हैं। वाचो बेगम, मनसो क्रोधो बेगम, जीवा बेगम, जीवा का जो बेग है उसको हम लोग प्रसाद पाने के द्वारा हम लोग जय कर सकते हैं। उदर उपस्थो बेगम, तो इसको सहन करने के लिए बोला गया है। तो लोभ को हम लोग जय कर सकते हैं सहन करने के द्वारा, रोग को जय कर सकते हैं, बीमारी को जय कर सकते हैं आहार नियंत्रण करने के द्वारा। तो प्रभुपाद जी का जो लेक्चर, प्रभुपाद जी का जो परपोर्ट है 6.18, तो उसमें और एक भागवतम में और एक श्लोक है, भागवतम में एक श्लोक है, वो श्लोक है जो कलियुग के बारे में, कलियुग का सिम्टम, प्रायण अल्पाय सब कलेस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत मंद भाग्य उपाद, तो उसमें भी लिखा है प्रभुपाद जी का कि जरूरत से ज्यादा खाते तो उनको बीमारी होगा। तो आहार नियंत्रण के द्वारा हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए। अत्याहार प्रयास, ज्यादा नहीं खाना चाहिए और बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए। युक्ताहार विहार युक्त ज्येष्ठ सुकर्म। तो श्रील प्रभुपाद जी हालांकि इस्कॉन के भक्तों के लिए अलग अलग प्रसाद पाने की अनुमति दिए हैं, क्योंकि कलियुग में लोग इतना वैराग्य का अनुशीलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब समय पास होता है, टाइम पास होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, यू आर पासिंग 4 years, 5 years, 6 years in कृष्ण कॉन्शियसनेस, वी शुड ट्राई टू reduce ओवर ईटिंग। तो ठीक है, आपको अच्छा खाने की इच्छा है, अच्छा खाइए, लेकिन जरूरत से ज्यादा मत खाइए। तो जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो उदर उपस्थ बेगम, उदर उपस्थ बेग, तो वो हमारे क्या बोलते हैं, पेट से सारे बीमारी होता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के दुख, अलग अलग प्रकार से रोग होता है। और फिर जब आप 40 साल जाएंगे, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तब क्या होगा? आपको वो स्वीट राइस नहीं खा सकते हैं, मैंगो नहीं खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते हैं, हम तो वो नहीं खा सकते हैं, तो अलग अलग, तो आपको बाय फोर्स छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जब मायापुर में ज्वाइन किया था तो कुछ ब्रह्मचारी लोग बोलते थे, अगर ज्यादा खाना है कम कम करके खाओ, अगर पूरी जीवन खाना है डेली थोड़ा थोड़ा करके खाओ, तो फिर आप बुढ़ापा में भी आम खा पाएंगे, बुढ़ापा में भी रसगुल्ला खा पाएंगे। तो अगर अभी, क्योंकि कोटा तो बना हुआ है, कोटा तो लिमिटेड है, तो इतना कोटा अभी इतना कोटा आपके लिए फिक्स है, ठीक है। अभी आपका चॉइस है, इतना कोटा आप 50 साल में खाएंगे ना, इतना कोटा आप 35 साल में खाएंगे। 35 साल में पूरा खा लेंगे तो कोटा खत्म। 35 साल के बाद आपका आ गया, रिपोर्ट आ गया, सर नो स्वीट्स बिकॉज यू हैव डायबिटीज, क्योंकि आपने कोटा कंप्लीट कर दिया। तो इसलिए अगर आपको मतलब 50 साल मतलब बुढ़ापा एंड तक खाना है तो थोड़ा थोड़ा करके खाइए, तो डेली टेस्ट कर पाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए ये एक विज्ञान है, तो बद्ध अवस्था में हमें समझ में नहीं आता है।
तो थोड़ा थोड़ा करके खाइए तो बहुत ज्यादा दिन तक खा पाएंगे। तो थोड़ा एंजॉयमेंट जो जरूरत है, हाँ, हम लोग तो पूरी तरीके से त्याग नहीं कर सकते हैं, हाँ, तो थोड़ा थोड़ा कृष्ण कॉन्शियस एंजॉयमेंट के द्वारा, हाँ, आप खुश रह सकते। नहीं तो आपके पास वाला व्यक्ति आपसे जो युवा व्यक्ति जब, हाँ, आपसे कम उम्र के लोग खाएंगे और आपको देख के जलन होगा, कष्ट होगा, बता अरे मैं खा नहीं पा रहा हूँ। तो इससे अच्छा है कि हम लोग अभी से थोड़ा थोड़ा करके आप सेंस कंट्रोल करें, तो बाय सेंस कंट्रोल यू कैन एंजॉय मोर। तो इस प्रकार रोग से मुक्त हो सकते हैं हम लोग आहार को नियंत्रण करने के द्वारा। आत्मसंयम के द्वारा मिथ्या आशा जो है, मिथ्या आशा से मुक्त हो सकते हैं आत्मसंयम के द्वारा। जो मिथ्या आशा, फॉल्स प्रॉमिस, कि ये सुख मिल जाएगा, वो सुख मिल जाएगा, इस प्रकार हम एंजॉय करेंगे और थोड़ा प्रयास करेंगे तो एंजॉयमेंट मिल जाएगा। तो जो मिथ्या आशा मन देता रहता है, भौतिक जगत जो प्रॉमिस करता है इस प्रकार आप भोगेंगे, उस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल के द्वारा, समो दमो, कंट्रोलिंग एक्सटर्नल सेंसेस, कंट्रोलिंग इंटरनल सेंसेस के द्वारा हम लोग आत्मसंयम कर सकते हैं। असत संग त्याग करने के द्वारा अर्थेर अपव्यय बंद करा जाए। हम लोग बहुत बार धन कमाते हैं और बहुत गलत गलत चीजों में उसको खर्च कर देते हैं। भगवान की सेवा में बहुत बार डोनेशन नहीं देना चाहते, लेकिन वो परिवार के साथ थोड़ा सा ससुराल के साथ घूमने के लिए, ससुराल में घूमने के लिए जाते हैं, बहुत पैसा खर्च करके आ जाते हैं, या परिवार वालों के साथ जाते हैं, इधर उधर जाते हैं और ये खरीदते वो खरीदते, सब सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, बॉडी के लिए खरीद के आ जाते हैं, ज्यादा धन खर्च हो जाता है। तो दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाते हैं, तो बहुत समय एक गलत, मतलब हमारे जो पैसा है वो खर्च हो जाता है। तो इसलिए असत संग त्याग करने के द्वारा गलत धन की अपव्यय जो होता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। যোগ অনুশীলনের ফলে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। भूख और प्यास को नियंत्रण किया जा सकता है योग करने के द्वारा। तो भक्ति के द्वारा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। तो ब्रह्मभूत स्तर में जो अधिष्ठित है, न सोचति न कांक्षति, भूख और प्यास, हैंकरिंग एंड लैमेंटेशन, इससे ऊपर आ सकता है भक्ति के द्वारा। जगतेर अनित्यता सम्बन्धे ज्ञान आरोहणेर फले विषय तृष्णा निवारण करा जाए। तो भौतिक विषय के प्रति जो आसक्ति है उससे मुक्त हो सकता है। इस भौतिक जगत के जो अनित्यता है उसके प्रति ज्ञान अर्थात शास्त्र अध्ययन करने के द्वारा, by studying scripture we can become free from the desire to enjoy in this material world. So more you study scripture, more you become aware of the exact situation of this material world. You exactly realize now current coronavirus situation at least should give us that realization that how material world is place of suffering. So by that we can become free from the desire to enjoy the sense object. বিহবলতা জয় করা যায় খুব ভোরে শয্যা ত্যাগ করার দ্বারা, আর তথ্য নির্ধারণ করার মাধ্যমে মিথ্যা তর্ক জয় করা যায়। তথ্য নির্ধারণ করার মাধ্যমে মিথ্যা তর্ক জয় করা যায়। বিহবলতা पता नहीं मेरे को বিহবলতা क्या है। বিহবলতা জয় করা যায় खूब भोरे शয্যা ত্যাগ। इंग्लिश में क्या लिखा है पढ़ना पड़ेगा। मौनता एवं गांभीर्य द्वारा बाचालता वर्जन करा जाए। मतलब जो ज्यादा गॉसिप करते हैं, मंडेन टॉक, उसको मतलब उसको विजय कर सकते हैं मौनता के द्वारा। तो मौनता का और एक
और एक एग्जाम्पल है कि मोबाइल फोन में ज्यादा मत घुसना। तो मोबाइल फोन में हम लोग सर्फिंग करते रहते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, और उसमें एक चीज से दूसरे गंदे गंदे चीजों में हम लोग घुसते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है, हमारे जो मेंटल पीस है, एब्जॉर्प्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस गेट डिस्टर्ब. So your absorption in Krishna consciousness goes out when we use mobile phone more than required. बीर्जे तरफ भय जय करा जाए. If you preserve semen, बीर्ज धारण करते हैं तो आप बलशाली होते हैं. आपके शारीरिक बल, मानसिक बल और आध्यात्मिक बल वृद्धि होता है, और उसके द्वारा आप भय को विजय कर सकते हैं. और आत्म अनुशीलने द्वारा पूर्ण ज्ञान लाभ करा जाए. और आत्म अनुशीलन, सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. प्रकृत पक्षे मुक्ति लाभेर जन्य काम, लोभ, क्रोध, स्वप्न इत्यादि থেকে मुक्त हुआ अवश्य कर्तव्य. तो अगर हम लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सारे चीजों से मुक्त होना बहुत ही जरूरत है. हरि बोल, बहुत इम्पोर्टेंट है. तो और फिर स्त्री धर्म के बारे में बताते हैं भीष्मदेव. और भीष्मदेव कह रहे हैं कि जो स्त्री है पुरुष से भी ज्यादा शक्तिशाली है. तो फिर उदाहरण के हिसाब से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जूलियस सीजर इतने शक्तिशाली था, पूरे पृथ्वी में राज किए थे, लेकिन क्लियोपेट्रा के पास आके उनके पास सरेंडर कर दिए. क्लियोपेट्रा के पास आके उनके पैर का नौकर बन गए. तो स्त्री इतने शक्तिशाली हैं कि उनके एक पुरुष को, एक बड़े बड़े राजा जो पृथ्वी जय की, उसको भी विजय कर लेते हैं. तो उनके शक्ति, उनके ब्यूटी के द्वारा. तो लेकिन स्त्री जो होते हैं लज्जा के द्वारा स्त्री नियंत्रित होती है. तो ये जो स्त्री का जो भूषण है, चेस्टिटी, नारीणां भूषणम पति. तो नारी के जो भूषण है उनके पति है, उनकी चेस्टिटी है. तो but when there is no chastity, women become loose, and when women become loose, then there is illicit sex life, and because of illicit sex life, Varna Shankar produce hota hai, unnecessary children comes up. So therefore the woman has to practice the chastity. Women need to practice chastity, and husband has to be husband should have should be advanced in Krishna consciousness. If husband is advanced in Krishna consciousness, he have sense control, and when he have sense control, he can control the wife. So then wife will respect the husband, and thus both can lead a Krishna conscious life, and then Krishna conscious children will take birth. इस प्रकार भीष्म पितामह प्रभुपाद जी बहुत बड़ा तात्पर्य दिए हैं इस श्लोक में. दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागश, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास वैस जोगतः. तो भीष्मदेव इस प्रकार दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म के बारे में वर्णन किए, और उसके बाद स्त्री धर्म और भक्तों के जो कर्तव्य हैं उसके बारे में वर्णन किए. तो भक्त के जो कर्तव्य हैं उसके बारे में भीष्मदेव प्रभुपाद जी तात्पर्य में पंचांग भक्ति के बारे में वर्णन किए हैं. तो साधु संग, हरिनाम, भगवत श्रवण, मथुरा बा श्रीमूर्तिर श्रद्धाय श्रवण, सकल साधन श्रेष्ठ এই पंचांग
कृष्ण प्रेम उपजाए यही पाचेर अल्प संगो। तो चैतन्य महाप्रभु 64 अंग में ये मुख्य 5 अंग के बारे में वर्णन किए हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, 5 अंग का अनुशीलन करने के लिए आपको बहुत सारे धन की आवश्यकता नहीं है। तो आप इस 5 अंगों का अनुशीलन करने के द्वारा आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये भक्तों की मूल कर्तव्य है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे जो संजीव प्रभु कुछ लोग निकल गए, तो उनको वापस बुला लीजिए, ठीक है। सांबो प्रभु निकल गए और 1-2 जन निकल गए। तो हमारा छोटा सा 10 मिनट का मीटिंग करना है। तो किसी का कोई प्रश्न है?